everyone. How are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture of grade 4 and I am your science teacher Aparna Pandey from DPS Lamachor. So students, as you all know that we have already started chapter number 9, Teeth and Digestive System in Science, right? And in this chapter we have completed our topic teeth completely. Whatever is given in your book related to teeth, that all topics we have covered. So in this class first we will do the quick revision of that some topics and then we will start today's new topic. So in our previous classes we have learned that in human beings there are two types of teeth. One set of teeth is called milk teeth, another set of teeth is called permanent teeth. So we have two sets of teeth. Milk teeth, there are 20 teeth in the milk teeth and 32 sets of teeth in the permanent teeth. 32 sets of teeth contain 16 teeth in the upper jaw and 16 teeth in the lower jaw. Then we have discussed about the types of teeth, where I have introduced you with 4 types of teeth, and they are canines, incisors, premolars and molars, and then we have learned their functions. After that we have also learned the proper structure of tooth, where I told you that tooth has many two parts, root and crown. Root is the part that is inside the gum and crown is the part that is visible outside. Then I told you that if we see the particular structure of tooth, then we will come to know that it has 3 layers: enamel, dentine and pulp. Enamel is the outermost layer which is very hard. Dentine is inner layer, this is also very hard, and pulp is inside the dentine. In the middle portion of the dentine, it is very soft, contains blood vessels and nerves. This all we have discussed in our previous classes. In today's class, students, we are going to start new topic that is related to digestion. As the name contain teeth and digestive system. So related to teeth, all the informations we have discussed here. Now it's time to discuss about the digestive system. So for that, kindly open page number 84 of your science book. Here you can see that why I am saying you to open the digestive page number 84, because here this digestive system diagram is also given. Okay, so you can see this also and you can go through line by line. Whatever I am telling you, you can see in your book also. You know that every day we eat variety of food. You know this everyone. The food we eat cannot be used by our body as it is. हम जो भी खाते हैं वो बॉडी हमारी बिल्कुल वैसे ही उसे यूज नहीं करती. तो होता क्या है, the digestive system in our body breaks down the food into the simpler form. होता क्या है, जो हम फूड खाते हैं हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पहले वो उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है. So what is given here? It is broken down into simpler substances so that nutrients in the body can be absorbed by the blood in our body. वो क्या करता है digestive system? फूड को ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है जिसे कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब करा जा सके और फिर हमारी बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट हम पहुंचा सके. राइट? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? The breaking down of food into simpler substance by the digestive system is called digestion. Food का टूटना simplest form में digestive system की help से is called digestion. The breaking down of food into the simplest substance or into the simplest form by the digestive system is called digestion. तो सबको समझ में आ गया डाइजेशन क्या होता है? जो हमारा फूड होता है उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ देना डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेशन.
Our body produces enzymes that help to break down the food we eat. एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा फूड ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ये फूड ब्रेक डाउन होता कैसे है? तो बेटा ये फूड ऐसे ब्रेक डाउन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, या एंजाइम्स को हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस मतलब ये एक तरीके का लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है, जो हेल्प करता है इस फूड को, जिस फूड को हम खा रहे हैं उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने में। ओके, सो our body produces enzymes that help to break down the food we eat. They act on different kind of food in the digestive system. हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के फूड को वो ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर हमारा शुगर कंटेनिंग फूड है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अलग एंजाइम होगा, अगर हमारा फैट कंटेनिंग फूड है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अलग एंजाइम होगा। मीन्स जिस तरीके का न्यूट्रिएंट होगा उस तरीके के न्यूट्रिएंट के ब्रेक डाउन के लिए वैसा हमारा एंजाइम होगा। ये सब चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? दीज ऑल एंजाइम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन बीइंग्स इन द माउथ। अब डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एज सून एज वी पुट अ बाइट और अ पीस ऑफ अ फूड इनसाइड अवर माउथ, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जब आप फूड को च्युइंग करते हैं वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप, जो आपके माउथ के अंदर स्लाइवा है, ये जो लिक्विड फॉर्म होता है आपके माउथ के अंदर, ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ओके, और आपको सॉलो डाउन, फूड को निगलने में भी हेल्प करता है। तो जो मेन डाइजेशन है वो स्टार्ट हमारे माउथ से ही हो जाता है। सो digestion begins in the mouth. Take a bite of your bread. Chew it well. It will taste slightly sweet after 2 minutes due to the action of saliva. ठीक है, तो ये आप you can try this experiment in your home. आप घर पे कर सकते हैं। जब आप ब्रेड खाएं you can try this. फिर तो आपको after few seconds आपको एक टेस्ट फील होगा, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें सलाइवा ने हेल्प करा है उस फूड को ब्रेक डाउन करने में। ना, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेशन। और डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? डाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हेल्प करते हैं। एक्चुअल में ये एंजाइम्स होते क्या है? ये एंजाइम्स एक तरीके का लिक्विड होता है जिन्हें हम डाइजेस्टिव जूसेस भी कहते हैं, जो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होते हैं। खाली स्टमक भी नहीं कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होते हैं और वहां रिलीज होकर के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, राइट? सो now students, it's time to discuss about the various parts of our digestive system. As I told you that digestion starts from mouth. Digestion हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से लेके हमारे कौन से बॉडी के पार्ट तक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हम पहले वो देखेंगे। Then we will discuss the functions of that particular part of the digestive system. पहले हम ये देखेंगे कि कौन से पार्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। देन सेकंड वी विल डिस्कस कि जो पार्ट हमारा आता है उसका क्या फंक्शन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी दैट द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज वेरियस पार्ट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे यू कैन सी हियर, नंबर 1 इज माउथ, Number 2 is food pipe. Number 2 is food pipe. Number 3 is stomach. Number 4 is small intestine. Number 5 is liver. Number 6 is large intestine. Number 7 is anus. So beta, you can see here that I have told you different parts of the digestive system.
अभी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, आप ये ध्यान देंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कहा आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, इट इज एंडिंग एट एनस, एनस पे फिनिश हो रहा है। स्टार्ट माउथ से हो रहा है, फिनिश एनस पे हो रहा है, राइट। डाइजेशन हमारा स्टार्ट माउथ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे हो रहा है। एंड you can see that I have written 7 parts. I have written 7 parts. तो हम आगे कुछ भी पढ़ने से पहले ये चीज ध्यान रखेंगे that our digestive system contains 7 parts. ठीक हो गया, और ऐसा क्यों, so that we can remember the things, ठीक है, हम चीजों को याद रख सकें। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पे एंड हो रहा है, एंड इंक्लूडिंग माउथ एंड एनस वी हैव 7 पार्ट्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से, वेरी इजी। नाउ अब जो मैं बता रही हूँ, यू हैव टू गो थ्रू दिस डायग्राम, आप डायग्राम से देखते रहिए, आई एम टेलिंग यू हियर, ओके। अपनी बुक में सारे लोग बुक ओपन करिए एंड काइंडली गो थ्रू दिस डायग्राम। फर्स्ट वन इज माउथ, you can see it is given very clearly in the diagram. First one is mouth, second one is food pipe. ये mouth, this is our food pipe, ये जो हमारा food pipe होता है, okay? तो first is mouth, second is food pipe. This is very clearly visible in the diagram, so kindly open book page number 84 and you can check there. Another thing is that after food pipe what is there, stomach. After food pipe what is there, stomach. Stomach, after stomach what is there, small intestine. Small intestine, after small intestine what is there, liver. What is there, liver. After liver what is there, large intestine. After liver what is there, large intestine. Then after large intestine what is there, anus. After large intestine what is there, anus. So what we have seen that there are mainly 7 parts in the digestive system: mouth, food pipe, stomach, large intestine, liver, small intestine, anus. Okay, again repeat after me: mouth, food pipe, stomach, liver, or yes, you can say stomach, small intestine, liver, large intestine, anus. These are the different parts of the digestive system. अब देखिए, now you all are familiar with digestive system, but do you know? You know that digestive system helps in the digestion of food. In digestive system, breakdown of complex food into simpler form takes place. Then what we have learned? We have learned that digestive system have different parts, means total 7 parts are there and it starts from mouth and ends at anus. इतना हम सब डिस्कस कर चुके हैं. Now what is our role? Now we are going to discuss about particular पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में. अभी हमने सिर्फ पार्ट्स के नेम्स के बारे में डिस्कस किया है. सो नाउ सी, नंबर 1 पार्ट इज माउथ. सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, माउथ. तो व्हाट इज द रोल ऑफ माउथ इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? वेरी सिंपल. माउथ क्या करता है? माउथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्विंगिंग द फूड. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. माउथ हमारा फूड को बाइट करने में और च्विंग करने में हेल्प करता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट इन आवर माउथ सलाइवा इज प्रेजेंट. सलाइवा जो हमारी ये राल जिसे हम बोलते हैं ना बेटा, जो ये आपको एक तरीके का लिक्विड आपके माउथ के अंदर बनता है, दैट इज सलाइवा. अभी सलाइवा क्या करता है? सलाइवा का रोल होता है फूड को ब्रेक डाउन करना. सो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो गिवन in your book also that saliva help in moist the food. जो हमारा फूड होता है उसे गीला करने में, उसे मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जब आप च्विंग करें तो वो एक इस तरीके से हमारा चोप हो जाए, इतने बढ़िया तरीके से चोप हो जाए कि आप उसे इजीली सॉलो कर सकें. ओके, सो द टीथ चॉप, chew and break the food into small pieces.
The saliva in our mouth makes the food soft and moist. Okay, one thing is over. So now we all know about the function of the mouth. Mouth breaks chop and chew the food, and saliva helps in making it moist and soft. Second part of our digestive system is food pipe. फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है बेटा? फूड पाइप हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। फूड पाइप क्या करता है? हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी फूड हम लेते हैं माउथ के अंदर और स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये फूड पाइप के थ्रू ही हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। फूड पाइप के थ्रू ही हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप टेक्स फूड इनटू स्टमक। देन थर्ड पार्ट इज अवर स्टमक। अब स्टमक का क्या रोल है? देखिए, फूड हमारा च्युइंग होकर के स्टमक तक आ गया, वहां तक फूड पाइप ने पहुंचा दिया। अब स्टमक के अंदर क्या होता है? स्टमक के अंदर हमारे डिफरेंट एसिड और एंजाइम्स होते हैं। स्टमक के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? ये एसिड और एंजाइम्स फूड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। ये एसिड और एंजाइम्स फूड्स को ब्रेक करते हैं, एक तरीके का सूप बना देते हैं। जो हमने सॉलिड फॉर्म में जो फूड लिया था वो सारा स्टमक में जाकर के एसिड और एंजाइम्स की हेल्प से एक तरीके का सूप बन जाता है, मिक्स हो जाता है, एक तरीके का मिक्सचर बन जाता है। ओके, स्टमक के बाद हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा फूड स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो क्या होता है? जो भी स्टमक ने फूड का ब्रेक डाउन करा था और वहां न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा था, उसको सिंपलर फॉर्म में एक सूप के फॉर्म में बनाया था, तो वो सूप अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा? वहां से एब्जॉर्ब होगा। हमारा ब्लड उस सूप में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। वो करने का काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी स्टमक ने सूप बना के स्मॉल इंटेस्टाइन को दिया, उस सूप में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही सूप जाता है, वहां से फिर हमारे ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं। अब देखिए, उसके बाद हमारा आ जाता है लीवर इंटेस्टाइन के बाद। अब लीवर का क्या फंक्शन है? लीवर हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है एंड ब्रेक फैट इनटू सिंपलर फैट। अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हमारे स्टमक के अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो पर्टिकुलर टाइप के फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे कुछ एंजाइम्स हमारे स्टमक में भी रिलीज हो गए जिन्होंने हमारे फूड का ब्रेक डाउन करा। तो ऐसे ही कुछ एंजाइम्स हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? लीवर वहां से एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम कहिए या डाइजेस्टिव जूस कहिए, वो जूस जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो लीवर ऐसे जूस को रिलीज कर रहा है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और पर्टिकुलर किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। मींस फैट को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। फैट को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर फॉर्म में। तो ये किसका फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है लीवर का, कि लीवर हमारा फैट को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। तो लीवर डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक फैट इनटू सिंपलर फॉर्म। अब हमारे देखिए, फूड स्टमक में आया, स्टमक ने सूप बनाया, जो न्यूट्रिएंट्स थे फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा कुचा फैट था वो लीवर ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या हुआ? अब हमारा जो भी है फूड वो कहाँ आ गया? वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। वो कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का क्या रोल होता है? देखिए, फूड माउथ
से डाइजेस्ट होते हुए आ रहा है और लास्ट डाइजेशन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर में कंप्लीट हो जा रहा है। अब कुछ भी डाइजेशन के लिए नहीं बचा, स्मॉल इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट कर दिया और जो थोड़ा बहुत फैट का था वो लीवर के एंजाइम से फंक्शन हुआ और वहां वो भी डाइजेस्ट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हमारा फूड किस में आ रहा है, हमारा फूड आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा क्या फंक्शन होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो तो सारा हो गया उसका फंक्शन पूरा। अब जो फूड ऐसा है जो हमारे बॉडी या हमारे स्टमक ने डाइजेस्ट नहीं किया, जिसको हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट नहीं किया, तो ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड हमारा कहाँ स्टोर होता है, वो हमारा आके आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा जो भी डाइजेस्टेड फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट नहीं किया वो फूड हमारा कहाँ आ जाता है, वो फूड हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर वहां पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ कुछ वाटर भी होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड से वहां क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वहां से वो क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म फेसेस। फेसेस मीन्स वेस्ट मटेरियल, जो हम डेली अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल आउट करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेसेस। मीन्स वो जो आप स्टूल रिलीज करते हो रोज मॉर्निंग में, जो आप स्टूल रिलीज करते हो, दैट इज फेसेस। ओके, जो वेस्ट मटेरियल आप वॉशरूम जाते हो, आप टॉयलेट जाते हो, जो वेस्ट मटेरियल आप रिलीज कर रहे हो, दैट इज फेसेस। ओके, तो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रहता है, वहां से फिर वो क्या करता है, उस फूड में से जो वाटर स्टोर होता है वो वाटर को स्टोर कर लेता है एंड बाकी का वेस्ट मटेरियल रख देता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनस देन? अब एनस क्या करता है, वेस्ट मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। अब जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन ने अपने अंदर रखा था, एनस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर था, एनस के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। So students, I hope now in this way you will able to understand the function of different types of digestive parts of digestive system. Now for better understanding you can see the diagram as well as the functions also given here. You can go through this also. Now we are going to discuss some tips for digestion. अब देखिए, you have seen anywhere that some people are suffering from digestion problem also. तो there are some tips for digestion कि कैसे हमें अपने digestion को ठीक रखना है या अपने digestive system को ठीक रखना है कि हमारा digestion proper हो. So for that, chew your food well, do not talk while eating, eat at a fixed time. एक फिक्स टाइम रखिए कि इस समय ही खाना है, वो टाइमिंग में वेरिफिकेशंस नहीं होने चाहिए. Do not exercise after eating. खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी होती. Do not overeat. खाइए, अच्छे से खाइए, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है. Eat a balanced diet to stay healthy and strong. आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रहें और स्ट्रांग रहें. ड्रिंक 6 to 8 glasses of water every day. हर दिन आपको 6 से लेके 8 glasses वाटर लेना चाहिए. Eat enough roughage to remove waste from the body. Enough roughage खाइए. roughage means फाइबर वाला फूड खाइए. अब फाइबर वाला फूड क्या है, जिसमें अच्छी खासी पल्प होती है, फाइबर होता है, जैसे कैरेट, रेडिश, एप्पल, जिनमें पल्प हो, जिनमें आपका फाइबर प्रेजेंट होता है. ये चीजों को खाएंगे तो ये क्या करती हैं, फाइबर रफेज. ये न्यू वर्ड नहीं है आपके लिए, ये सब वर्ड्स मैंने
आपको फूड वी ईट चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रफेज हमारा हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में, यू ऑल नो दैट। ईट वन वेजिटेबल एवरी डे, एटलीस्ट एक वेजिटेबल हर दिन हमें खाना ही चाहिए। तो दीज आर द टिप्स फॉर कीपिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेल। So students, in today's class we have discussed about the different parts of digestive system as well as the function of different parts of the digestive system. I hope that this class will help you in making understand that how our digestive system works and what are the parts. I hope that you all will like this video. Thank you and have a nice day ahead.